ایک تو یہی رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، ہمارا ذرا زیادہ فوکس اسی پہ ہی ہوگا ابھی، اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ شیطان یا اس کے شیطان کے چیلے اور جنات وہ تو ویسے بھی انسان کے دشمن تو ہیں، وہ تو کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جو رمضان شریف کا اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کا، اس پہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حدیث میں بتا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ عام لوگ تو مسجد سے مراد مسجد کا سارا احاطہ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں مسنون اعتکاف ہوتا ہے جائے کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے اب ایک آدمی جب نیچے والی منزل سے اوپر دوسری منزل پہ جائے گا تو سیڑھیوں سے جائے گا، تو ظاہر ہے اب جب سیڑھیوں پر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا اس کا۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ سوتا ہی رہتا ہے تو اس کام کو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ایک نامناسب کام کر رہا ہے، اس اعتکاف ٹوٹے گا نہیں اس کا۔ نفلی اعتکاف تو یہ ہے کہ انسان جس وقت بھی مسجد میں جائے، جتنے وقت کے لیے بھی جائے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ ہے کہ مرد کے لیے سب سے بہترین جگہ اعتکاف کی وہ بیت اللہ شریف کی جو مسجد ہے، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے مسجد نبوی جس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو اس میں فضیلت ہے وہ مسجد اقصیٰ کی ہے، اور چوتھے نمبر پر پھر اس میں جامع مسجد ہے۔ بعد 5ویں نمبر پر وہ مسجد کے جو محلے کی مسجد ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ تو ان کاموں کا ثواب کہ جو نیکی کے وہ کام اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوتا، اللہ رب العزت اس کو بغیر کی بھی اس کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی پوری بستی والوں پر لازم ہے کہ کوئی شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر نہیں بیٹھے گا تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب گناہ گار ہیں کہ وہ اعتکاف بیٹھتے ہی سب سے پہلے متولی سے مسجد کی حدود کا پوچھیں کہ نظر کا اعتکاف ہو یا رمضان شریف کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ہو، ان دونوں کے لیے روزہ ضروری ہے۔ ہماری مسجد میں بھی کچھ اس قسم کے اثرات ہیں۔ سائڈ پہ کمرہ بنا ہوا ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ موبائل لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، تو وہ موبائل یوز کرتے ہیں اپنے یوز کے لیے، کوئی کام ہو ان کا پرسنل، تو وہ کتنا جائز ہے مسجد میں لے کے جانا اور کام کرنا؟ باہر سے جو بندہ کھانا دینے جاتا ہے گھر سے، وہ بندہ بیٹھتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، اس میں کتنی گنجائش ہے، کتنی بات کرنی چاہیے اور کتنی نہیں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر اور میرے ساتھ ہیں نبیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر محب الرحمان صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف میں جو مسائل ہمیں آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں اعتکاف کی فضیلت کا ہی نہیں پتہ ہوتا، یا تو اگر ہم اعتکاف بیٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اعتکاف کی اس فضیلت سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مزید ہم تفصیل جانتے ہیں اسکالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، آپ نے سنا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ ویسے تو ہم خود ہی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے چینل پہ، مگر یہ اتنا ضروری ٹاپک ہے اعتکاف کا، اور اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پروفیشنل کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ تو اس کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں کوئی تفصیل ہے تو کائنڈلی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت ہے، تو اعتکاف کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 کا بھی کیا ہے، پورے مہینے کا بھی کیا ہے، اور حتیٰ کہ ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام کو ایک عذر کی بنا پر 10 دن کا اعتکاف رمضان میں نہیں کر سکے تو پھر اس کی باقاعدہ قضا کی ہے شوال کے مہینے میں۔ اور پھر اعتکاف کے حوالے سے احادیث تو بہت ہیں، لیکن ایک حدیث جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا
हुआ यातकिफ़ुज़्ज़ुनूब कि एतिकाफ़ करने वाला शख्स गुनाहों से बचा रहता है। व युजरा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा, और एतिकाफ़ करने वाला शख्स जो है उसके लिए नेकियां ऐसे ही लिखी जाती हैं जैसे नेकियां करने वालों के लिए लिखी जाती हैं। गुनाहों से बचने की जो बात है वो तो बिल्कुल आम सीधी सी बात है, मुशाहदा है कि हमारा जो माहौल है दुनिया का, उज़ैर उसमें हमसे कदम कदम पे गुनाह होते हैं, और फिर इस मुबारक महीने में गुनाह होना बड़ी महरूमी की बात है। तो अब रमज़ान में एक आदमी जब एतिकाफ़ बैठ जाए तो कम अज़ कम वो गुनाह से ही बच जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर जो दूसरी बात इरशाद फरमाई उसका मतलब ये है कई ऐसे नेकी के काम होते हैं जो मोतकिफ़ नहीं कर सकता, मसलन जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं कर सकता, इसी तरीके से किसी बीमार की बीमार पुरसी अब बड़े सवाब का काम है लेकिन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो काम होते हैं तो उन कामों का सवाब कि जो नेकी के वो काम एतिकाफ़ की वजह से नहीं कर पा रहा होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बग़ैर की भी उसका सवाब अता कर देते हैं। और एक दिन के एतिकाफ़ की हदीस में ये फजीलत बयान फरमाई गई है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देते हैं और उनकी मसाफ़त ज़मीन व आसमान से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो रमज़ान शरीफ का एतिकाफ़ होता है 10 दिन का, इस पे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब हदीस में बताया गया है। तो कई फ़ज़ाइल हैं। तो बहरहाल ये बातें भी काफ़ी हैं मेरे ख़्याल में इसकी फ़जीलत के हवाले से। अब अगली बात यह है कि एतिकाफ़ के हवाले से मसलन पहली बात तो यही है कि एतिकाफ़ जो है कहाँ पर करना है। तो इसके लिए ये है कि मर्द के लिए सबसे बेहतरीन जगह एतिकाफ़ की वो बैतुल्लाह शरीफ की जो मस्जिद है, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में ये है। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मदीना मुनव्वरा में जो है मस्जिद नबवी जिसको कहा जाता है वो है। और तीसरे नंबर पर जो इसमें फजीलत है वो मस्जिद अक्सा की है। और चौथे नंबर पर फिर इसमें जामे मस्जिद है जिसमें जुमा होता है। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर वो मस्जिद के जो महल्ले की मस्जिद है जिसमें जुमा नहीं होता लेकिन जमात की नमाज़ होती है। और फिर इससे अगला दर्जा की जो ऐसी मस्जिद है कि वहाँ पर 5 वक्त की जमात की नमाज की तरतीब भी नहीं है, वहाँ एतिकाफ़ दुरुस्त है कि नहीं है, तो इसमें उलमा का थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है। बाज़ के यहाँ जायज़ है, बाज़ के यहाँ इसमें जायज़ ही नहीं है। और औरत के लिए घर के अंदर जहाँ पर अगर मस्जिद वग़ैरह की नाम से उन्होंने कोई जगह बनाई है जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं फिर तो वही जगह है। और अगर घर में ऐसी कोई जगह मुतय्यन नहीं है नमाज के लिए तो फिर मुतय्यन ख़ुद करके वहाँ एतिकाफ़ बैठ सकती हैं। तो ये हो गया कि भाई एतिकाफ़ करने की जगह क्या है। फिर अगली बात है एतिकाफ़ की के मसाइल बयान करने से पहले ज़रूरी है कि एतिकाफ़ की 3 किस्में हमें समझ आ जाएँ। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक तो यही रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ होता है, हमारा ज़्यादा फोकस इसी पे ही होगा, अभी उसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 एतिकाफ़ की किस्में और हैं। एक को नफली एतिकाफ़ कहते हैं। नफली एतिकाफ़ तो ये है कि इंसान जिस वक्त भी मस्जिद में जाए, जितने वक्त के लिए भी जाए, तो वो एतिकाफ़ की नीयत कर ले। और ये फ़तवा इस बात पर है कि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हत्ता कि 5 मिनट के लिए भी जाए, आधे घंटे के लिए भी जाएं, 1 दिन के लिए भी जाएं, ये सब नफली एतिकाफ़ है। तो और इसका कोई लंबे चौड़े इसके अहकामात नहीं हैं। जब तक आप मस्जिद में या एतिकाफ़ में हैं, जब आप उठ के बाहर आएंगे तो आपका एतिकाफ़ मुकम्मल हो गया है। इसकी ना क़ज़ा है और ना इसके लिए रोज़ा ज़रूरी है। नफली एतिकाफ़ के लिए रोज़ा भी ज़रूरी नहीं है। और दूसरा एक एतिकाफ़ है जिसको वाजिबी एतिकाफ़ कहा जाता है। वाजिबी एतिकाफ़ की 2 सूरतें होती हैं। एक होता है नज़र का एतिकाफ़, मन्नत मानी एक आदमी ने, तो अब ये जो मन्नत मान ली है एतिकाफ़ करने की, ये एतिकाफ़ वाजिब है। या इसी तरीके से जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में मसनून एतिकाफ़ होता है, इस एतिकाफ़ का इसको ये फासिद हो जाए, किसी वजह से टूट जाए, इसकी क़ज़ा जो की जाती है तो ये भी वाजिबी होता है। तो ये 2 तरह के वाजिबी एतिकाफ़ है। और तीसरा एतिकाफ़ यही है जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है, ये मसनून है। और ये मसनून जो है ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी पूरी बस्ती वालों पर लाजिम है कि कोई शख्स मस्जिद में
इतिकाफ़ में बैठे, अगर नहीं बैठेगा तो ये सब की ज़िम्मेदारी है, सब गुनाहगार हैं। अलबत्ता इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को उजरत पर लाकर इतिकाफ़ बिठाना ये दुरुस्त नहीं है। जिसको भी तैयार करेंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए बैठेगा, लेकिन उस उजरत पर नहीं बैठेगा। और फिर ये है कि इसको मसनून इतिकाफ़ कहा जाता है। तो मसनून इतिकाफ़ जो होता है इसका वक्त आखिरी अशरे का है, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है। 20वें रमज़ान का जो अभी रोज़ा इफ्तार होने से पहले आदमी के लिए मुनासिब है कि मस्जिद में जाए, क्योंकि इसका वक्त गुरूब आफ्ताब से ही शुरू हो जाता है। अब अगर एक आदमी गुरूब आफ्ताब के बाद एक लम्हा भी मस्जिद से बाहर है तो उसका ये मसनून इतिकाफ़ नहीं है। तो बाकी बीच में नज़र की बात भी आ गई है, उसको भी आपके ज़हन में सवाल होगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नज़र होती क्या है। एक ये भी एक सवाल है कि भाई नज़र किसको कहते हैं, हम नज़र क्या होता है। कई लोग कहते हैं जी फ़लाँ बंदे ने सदक़े की नज़र मानी है, मन्नत मानी। ये कब होता है? आया कि एक इंसान ने पक्का इरादा कर लिया तो ये नज़र हो गई है? इस तरह नहीं होता। नज़र अगर एक आदमी दिल में इरादा करता है, बहुत पक्का इरादा है जी मैं ये काम करूँगा, इतिकाफ़ करूँगा मसलन, ये नज़र नहीं है। अगर ज़ुबान से कहता है कि मेरा इरादा है मैं ये काम करूँगा, फिर भी नज़र नहीं होती। नज़र तब होती है कि जब वो कोई ऐसे अल्फाज बोले कि जिसमें नज़र और मन्नत मानने की वाज़ेह कोई निशानी उर्फ़ी लिहाज से मौजूद हो। बस वो यही कहे जी कि मैंने इतिकाफ़ 10 दिन के इतिकाफ़ करने की नज़र मानी है, या नज़र मानता हूँ, या अपने ऊपर लाजिम करता हूँ, या मैं अपने ऊपर मैंने लाजिम कर लिया है कि मेरा ये काम हो गया, या वैसे ही कहता है कि मैं इतने दिनों का इतिकाफ़ करूँ, तो नज़र का तब होता है। तो इस हवाले से एक बात तो ये ज़रूरी है कि नज़र का इतिकाफ़ हो या रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का मसनून इतिकाफ़ हो, इन दोनों के लिए रोज़ा ज़रूरी है। रोज़ा ज़रूरी है। अगर किसी वजह से रोज़ा उसका फासिद हो गया तो इसका इतिकाफ़ भी नहीं है। जी, रमज़ान में अगर मस्जिद में है तो अगर उसका रोज़ा टूट जाता है तो इतिकाफ़ ख़त्म। जी, अगर उसका रोज़ा टूट गया आखिरी इन इतिकाफ़ के दिनों में, ये नहीं कि शुरू से पूरा रमज़ान रोज़े रखें, वो रखे या ना रखे वो अलग मसला है, लेकिन जिस दिन का वो इतिकाफ़ कर रहा है उस दिन का रोज़ा ज़रूरी है। बाकी किसी भी वजह से उसका रोज़ा टूट गया, गलती से टूट गया, भूली से टूट गया, लेकिन रोज़ा टूट गया है, अब उसका मसनून इतिकाफ़ नहीं है, यानी उसका मसनून इतिकाफ़ ख़त्म हो गया है। इसी तरह जो वाजिब इतिकाफ़ अगर एक आदमी ने नियत मानी है कि मैं इतिकाफ़ करूँगा 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो जितने दिन का वो इतिकाफ़ करेगा उस दिन का वो रोज़ा भी रखेगा, चाहे रमज़ान का महीना हो या ना हो, जब भी उसने मन्नत मानी है। इतिकाफ़ टूट गया एक आदमी का, फिर क्या है, ये भी एक सवाल है। अब एक आदमी है रमज़ान में उसने मसनून इतिकाफ़ किया, उसका इतिकाफ़ टूट गया है, तो जिस दिन इतिकाफ़ टूटा है ये 1 दिन की क़ज़ा करेगा, 10 दिन की नहीं। इसमें मसला ये है, जिस दिन टूटा है उस दिन की इतिकाफ़ की क़ज़ा करनी नहीं। इसने 1 दिन मज़ीद अब रमज़ान, चाहे उसी रमज़ान में अगर वक़्त बाकी हो, दूसरे दिन तीसरे दिन रख ले, 1 दिन का रोज़ा ज़ाहिर उसका होगा तो इतिकाफ़ कर ले, उसकी क़ज़ा कर ले जो टूटा है, चाहे अगले रमज़ान में कर ले, चाहे रमज़ान के बाद एक आध किसी दिन मस्जिद में आ जाए और रोज़ा रख के आ जाए और दिन वहाँ गुजारे तो उसकी कर ले, क़ज़ा कर ले। और फिर दूसरी बात इसमें यह भी है, अगर किसी आदमी का मसनून इतिकाफ़ टूट गया है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद से निकल जाए, इसलिए कि मसनून इतिकाफ़ टूटने से नफली इतिकाफ़ तो नहीं टूटता। अब ये मस्जिद में बैठा रहे तो इसका नफली तो फिर भी है ना, नफली तो बरकरार है ना, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये उठ के अब गाड़ी चला जाए। ठीक है, उसका मसनून इतिकाफ़ नहीं है, 1 दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन ये अब उधर फिर भी बैठता तो नफली इतिकाफ़ का सवाब उसको मिलता रहेगा। तो अब एक चीज़ इसमें यह भी है कि इतिकाफ़ टूटता कब है, तो इसमें एक ही चीज़ है जैसे इतिकाफ़ टूटता है, वो ये है कि हुदूद मस्जिद से आदमी बग़ैर ज़रूरत के 1 लम्हा भी बाहर जाएगा तो वज़ू इसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। हुदूद मस्जिद। मौलाना साहब इसमें एक क्वेश्चन है कि जो लोग मस्जिद में, हमने सोचा है, देखा हुआ है कि एक ऊपर वाली मंजिल होती है और एक नीचे होती है, जो लोग नीचे बैठते हैं उनसे सुना हुआ है कि ऊपर नहीं जाना, आपका इतिकाफ़ टूट जाएगा। इसमें क्या वो है, सच्चाई है कि यार टूट जाता है? ठीक है, अब ये इसी में एक बात है, इसकी असल बात यह है कि हुदूद मस्जिद से मुराद क्या है। इस सवाल का जवाब इसी में है। हुदूद मस्जिद से इसका मतलब भी समझना ज़रूरी है, इसलिए कि आम लोग तो मस्जिद से मुराद मस्जिद का सारा अहाता लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हुदूद मस्जिद से मुराद ये होता है
وہ جگہ کہ جس کو مسجد بنانے والے نے نماز کے لیے اور مسجد کے لیے وقف کیا ہے. یعنی مسجد کا جو سارا احاطہ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہیں اور کچھ مسجد کی ضروریات ہوتی ہیں. اب مثلا وضو کی جگہ بنائی ہے, اب ظاہر ادھر تو نماز کسی نے نہیں پڑھنی. اسی طرح مسجد میں قاری صاحب کے لیے کمرہ بنا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات مسجد میں ایک کمرہ بناتے ہیں دریا شریعہ رکھنے کے لیے. بعض اوقات کسی مسجد میں بچوں کے پڑھنے کے لیے تھوڑی سی ایک جگہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری جگہ جو ہوتی ہیں تو اس میں اگر تو مثلا قاری صاحب کا کمرہ ہے یا بچوں کے پڑھنے کی جگہ ہے یا دریا وغیرہ رکھنے کی جگہ ہے, اگر تو اس جگہ کے لیے بھی مسجد کے بنانے والے متولی بانی نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا پھر تو وہ مسجد ہے. لیکن اگر اس نے اس کو مسجد کی ضروریات کے لیے وقف کیا اور نماز وغیرہ کے لیے نہیں کیا تو پھر وہاں پر جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اب جو آپ نے بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے, اب دیکھیں سیڑھیاں جو ہوتی ہیں یہ مسجد کی حدود سے باہر ہے. اب ظاہر سیڑھیوں پہ تو کوئی نماز نہیں پڑھتا, تو ظاہر ہے اب ایک آدمی جب نیچے والی منزل سے اوپر دوسری منزل پہ جائے گا تو سیڑھیوں سے جائے گا, تو ظاہر ہے اب جب سیڑھیوں پر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا اس کا. تو اس لیے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوتی ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ وہ اعتکاف بیٹھتے ہی سب سے پہلے متولی سے مسجد کی حدود کا پوچھ لے. یہ ضروری ہے کیونکہ حدود مسجد بعض اوقات ایسی ہوتی ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی, تو اس لیے وہ اس سے پوچھ لے. بلکہ بہتر تو یہ کہ ہر مسجد میں نقشہ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں تک مسجد کی حدود ہے, یا کوئی وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے حدود مسجد ہیں, اس سے آگے مسجد کی حد ختم ہے. تو کیونکہ مسجد سے جب باہر جائے گا معتکف تو بغیر ضرورت کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا. پھر اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ ضرورت جب ہم کہتے ہیں بھائی ضرورت کے بغیر جانا, تو ضرورت سے مراد کیا کیا ہے. کئی چیزیں ہمارے یہاں ضرورت میں سمجھ جاتی ہیں لیکن وہ ضرورت میں نہیں آتی. اکثر ہمارے یہاں لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو کلی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب یہ کلی کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اب کلی کرنے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں وضو کی جگہ پر جو کہ مسجد کی حدود سے باہر ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, یعنی مصنوعی سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے وضو پر وضو کے لیے, ایک آدمی کا وضو بنا ہوا ہے, کہتے ہیں تازہ وضو کر لیتے ہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے معتکف کے لیے. اسی طرح غسل کا مسئلہ ہے, اگر تو ایک آدمی ہے اس پر غسل واجب ہے, اس نے تو غسل کے لیے باہر جانا ہے, اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن ایک آدمی جمعے کا غسل کرنے کے لیے یا ویسے ہی جو ہے وہ گرمی اس کی گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے معتکف, تو یہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. بلکہ جو احتلام ہونے کی وجہ سے بھی اس کو غسل کرنا پڑ گیا ہے, لازمی ہے مثال کے طور پر, اس کے لیے بھی علماء نے یہ لکھا ہے اگر کوئی ایسی ترتیب ہو کہ مسجد میں رہ کر یہ غسل کر سکتا ہو, مثلا کوئی ایسا نلکا ہے جہاں پر یہ غسل کرے پانی مسجد سے باہر گر جائے, یا کوئی ایسا ٹب موجود ہے, کوئی بھی ایسا انتظام موجود ہے کہ یہ مسجد کے اندر ہوتے ہوئے غسل کر سکتا ہے, تو پھر اس کو مسجد سے باہر جانے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے. وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے, اگر اس کی کوئی ایسی ترتیب ہے, کوئی ایسا نلکا لگا ہوا ہے کہ اس پہ وضو کرے تو یہ خود مسجد میں ہوگا, مسجد کی حدود میں ہوگا اور پانی باہر گرے گا, تو پھر اس کے لازمی کہ ادھر ہی وضو کرے گا, یہ باہر نہیں جا سکتا. تو یہ اس طریقے سے چیزیں ہیں جو عوام کے ذہن میں نہیں ہوتی, اس سے وضو ایسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ کہ باہر سے جو بندہ کھانا دینے جاتا ہے گھر سے, وہ بندہ بیٹھتا ہے, حال چال پوچھتا ہے, بات کرتا ہے, اس میں کتنی گنجائش ہے, کتنی بات کرنی چاہیے اور کتنی نہیں کرنی چاہیے, مطلب وہ ایک جو معتکف ہے اس کے لیے کتنی گنجائش ہے کسی سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہمارے ہاں لوگ غلط فہمی کا شکار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ بات بالکل نہیں کرے گا, اکثر اپنے سر پہ رومال ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگ بھی سمجھیں کہ معتکف ہے, مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرے. ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ شریعت میں خاموشی کے نام سے کوئی عبادت مستقل کوئی عبادت نہیں ہے خاموش رہنا. یہ تو الگ بات ہے کہ خاموش رہنا بہتر تو ہے, انسان کو چاہیے کہ زیادہ اللہ کو کام نہ کرے, بات نہ کرے, خاموش رہے, لیکن یہ کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے خاموش رہنا, یہ کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت کے مطابق اس کو بات کرنی چاہیے. تو جتنی ضرورت ہے اس میں تو یہی ہے, بس جتنی ضرورت ہے وہ جتنی ضرورت سمجھتا ہے اتنی اس کو بات چیت کرنی چاہیے. تو زیادہ ظاہر ہے مسجد میں ہنسی کھیل کا مذاق نہیں ہونا چاہیے, وہ نظام نہ ہو, لیکن ہلکی پھلکی بات وہ کر بھی سکتا ہے اور جتنی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے اس کو. اس میں ایک اور کوشچن ہے مولانا صاحب کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ موبائل لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ, تو وہ موبائل یوز کرتے ہیں اپنے یوز کے لیے, کوئی کام ہو ان کا پرسنل, تو وہ کتنا جائز ہے مسجد میں لے کے جانا اور کام کرنا؟ تو اس میں یہی بات ہے کہ ضرورت کو دیکھا جائے گا. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے, ضروری باتیں ہوتی ہیں ایک آدمی کی,
तो जहाँ तक जितनी ज़रूरत है वो कर सकता है। लेकिन इसमें बेहतर यही है कि जब एक आदमी दुनिया से मुनक़ते होकर अल्लाह के दर पे पड़ा है तो उसके लिए बेहतर यही है जितना उसके इस्तिताअत और उसमें बस में हो तो इन चीज़ों को, दुनियादारी को वो छोड़े। अगरचे वो बातें करने से इत्काफ़ नहीं टूटेगा जितनी भी कर ले। इत्काफ़ टूटने के लिए असल बात यही है कि या तो इंसान का रोज़ा टूट जाए और या इंसान हुदूद मस्जिद से बाहर आ जाए। अच्छा, इसमें एक और बात ये कि जब हम इत्काफ़ बैठे थे आज से 3 साल पहले, हमें बताया गया था कि आप रात को जब सोएंगे आपको गैबी ताकतें तंग करेंगी। ठीक है, हमारी मस्जिद में भी कुछ इस किस्म के असरात हैं। साइड पे कमरा बना हुआ है तो उसमें कहा जाता है, हमने देखा नहीं, कहा जाता है तो वो एक बंदे को तंग किया भी था रात को। ठीक है, वो सोया हुआ था और उसको उठा के उसने बाहर फेंका। ठीक है, अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये बस लोगों की बातें हैं या वाकई में जो मुतकिफ होता है उसको ये चीज़ें तंग करने आती हैं? इसमें ये है ना, देखिए मस्जिद तो जो है ये अमन का गहवारा है और ये जो चीज़ें तंग करने वाले इंसान को होती हैं ये अक्सर नापाक जगहों पर होती हैं। तो इसमें इंसान के गुनाहों का और इंसान के बदजनी का, बदगुमानी का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल होता है। जब एक इंसान अपने ऊपर एक चीज़ को सवार कर लेता है ना तो फिर उसके साथ ये मसाइल पेश भी आते हैं। और दूसरा गुनाह होता है, अगर एक आदमी मस्जिद में बैठ कर भी मस्जिद के एहतराम का ख्याल नहीं रखेगा तो उसके लिए तो मसाइल बन सकते हैं। लेकिन जो बंदा मस्जिद के एहतराम का ख्याल रखेगा तो मस्जिद तो अमन की जगह है, तो इसलिए ये मसाइल नहीं होते उस बंदे के साथ कि जो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ ले फिर जो यानी आपने उस हिसाब से वो ठीक हो, कोई मसला नहीं होता। बाकी शैतान या उसके शैतान के चेले और जिन्नात वो तो वैसे भी इंसान के दुश्मन तो हैं, वो तो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। वो कोशिश में तो हर वक्त लगे होते हैं किसी इंसान को जितना तंग कर सकें, और फिर शैतान नेक आदमी को ज़्यादा तंग करता है। हाँ, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मस्जिदें अमन की जगह हैं। अगर इंसान ज़्यादा उसका बदगुमानी का अपने ऊपर ना हो तो इतना मसला नहीं होता। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि मस्जिद में जो इत्काफ़ है, मुतकिफ़ है, वो अगर सो जाता है, ज़्यादा सोता है तो इसमें क्या उसका कोई सोने की क्या गुंजाइश है उसमें? ज़्यादा सोता है तो फिर क्या? बेहतर तो ज़ाहिर है इसमें यही है कि वो सोने को कम से कम करे, इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत के लिए आया हुआ है। और ज़रूरतन जो सोना है मुनासिब, उससे कोई मसला भी नहीं। वो सो भी रहा होगा तो इबादत में शुमार होगा। लेकिन एक आदमी जो है वो सोता ही रहता है तो इस काम को हम यही कहेंगे कि भाई ये एक नामुनासिब काम कर रहा है। इससे इत्काफ़ टूटेगा नहीं, उसका सवाब में कमी आएगी, ज़रूर आएगी। अमाल नहीं कर रहा तो करने वाले के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि नामुनासिब काम है, इससे इत्काफ़ टूटता नहीं है। अच्छा, जब हम इत्काफ़ बैठे थे ना, हमें मौलाना साहब ने बताया था कि उससे पहले हमने मगरिब में अवाबीन पहले नहीं पढ़े कि नाम हमें पता था, क्योंकि इस्लाम में बंदा जैसे ही दीन के रास्ते पे आता है तो पता चलने लगता है, पढ़ता है नफलों का भी, बदात का। हमें पता चला कि मगरिब में अवाबीन के नफल होते हैं। ठीक है, तो हमने मतलब उसका एहतमाम किया। उसका ये कि कोई फजीलत उनकी है, रमज़ान में अगर वैसे भी कोई पढ़ रहा है उसकी क्या फजीलत है आपके माइंड में? ये है इस तरह अवाबीन की फजीलत तो बहुत ज़्यादा है और ये पूरा साल है। और रमज़ान में तो ज़ाहिर है एक नफल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो इसलिए जितने भी नवाफिल हैं, अवाबीन के हों, चाश्त के हों, इशराक के हों, तो वो एक नफल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर है। तो इसलिए तो इसका ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। बाकी इस वक्त जो है वो बेतअयीन फजीलत अवाबीन की मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा आती है। जी, काफ़ी कुछ मेरे ख्याल में डिस्कस हो चुका है जो कि ज़रूरत था। ठीक हो गया। और एक इंसान जो कि इरादा करने लगा था या करेगा, उसके लिए काफ़ी नॉलेज मेरे ख्याल में शेयर हो चुकी है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।